is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am come up with a new type of video in which I am going to give you admission notifications from the various institutes. So today I am going to tell you about the MTech admission notification from the well-known institute, that is IIST. IIST stands for the Indian Institute of Space Science and Technology. This institute declared as a deemed to the university under the section 3 of the UGC Act 1956. Indian Institute of Space and Science and Technology has been established in the year 2007 as an autonomous academic institute under the Department of Space, Government of India. So IIST is committed to attract talented students, putting in place of system which ensure high academic standard, and thirdly actively encourage innovative research in the area relevance to the space science, space technology, space application and other related basic science area. So these are the main motto or objective of the institute and everything. Now we talk about the departments of the this institute. That is, first one is aerospace engineering, in which there are three branches, that is thermal and propulsion branch, aerodynamic and flight mechanism, structure and design. These are the three branch come into aerospace engineering. Now next one is avionic department, in which RF and microwave engineering includes digital and signal processing, VLSI and microsystem and control system, power electronics. These are come under the department of avionics. Now next one is the mathematics. In this only one branch is available, that is machine learning and computing. Other department is chemistry. In this also only one branch is available, that is material science and technology. Next one is about the physics. Physics includes optical engineering, solid state technologies. These are the two branches for the physics. Next one is earth and space science. In this earth system science and the geoinformatics and the masters of science in astronomy and astrophysics are included. So these are the all about these information, all about the departments and the branch of which offered by the institute for the MTech. About the institute. Now the age limit for the filling the application is 32 years as on the date 8/6/2020. So age relaxation is applicable to the SC/ST person with disability category as per the Government of India's order. And the educational qualification and eligibility criteria is BE, BTech, Masters of Science or equivalent degree with the minimum 60% of marks or CGPA 6.50 out of 10 grades. For EWG General OBC category, and minimum of 55% marks or CGPA 6 out of 10 for SC, ST or PD category. A valid, and also important that a valid GATE score, valid scorecard of GATE, JEST, UGC, NET, CSR NET is relevant area in the relevant area as the case may be specified our essentials. So when the CGP and the equivalent percentage are both provided in the marks list, certificate and CGP along would be considered for the eligibility. Okay. Next is about the general condition. That the general condition is that the candidate should be a Indian, should be this application for the admission of only Indian students, and the application रिसीव ओनली ऑनलाइन ही एप्लीकेशन रिसीव हो सकता है। और साथ में ही ये जो अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक बार फिलिंग के बाद आप अपना प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन हु विल
विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंशन इट ऑन द टाइम ऑफ अप्लाइंग इटसेल्फ, ठीक है। द एप्लीकेंट कैन चूज 6 रेफरेंसेस मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं, अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक बार फाइनलाइज करने के बाद आप प्रेफरेंस को भी चेंज नहीं कर सकते। SC ST और OBC और EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट शुड अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट अवेलेबल इन द एडमिशन पोर्टल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना ही होगा, जो कि है। और OBC NCL सर्टिफिकेट जो होगा वो इशूड होना चाहिए आफ्टर सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/4/2020 ओनली विल बी एक्सेप्टेबल। तो इस डेट के बाद ही जो OBC सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल है। अगर सिचुएशन के हिसाब से, कोविड सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए, साथ में जो वेबसाइट पे फॉर्मेट दे रखा है उसको फिल करिए। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन फॉर SC ST OBC EWS एंड PD कैंडिडेट विल प्रोसेस ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रिलेवेंट प्रूफ ऑनलाइन। जब तक आपके पास रिसिप्ट जो ऑनलाइन आपने वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, नहीं तो वो नहीं वैलिड होगा, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर द सीट, अगर रिजर्वेशन है सीट की SC ST और OBC EWP और PD की, वो बिल्कुल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के अनुसार ही होगा। अगर और साथ ही में ST का जो सीट है, अगर ST का सीट वैकेंट रह जाता है तो वो सीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी SC कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के रिलेटेड इसके बारे में। तो फ़ीस का ये इस एप्लीकेशन फ़ीस का के प्राइस है ₹600 फॉर जनरल एंड OBC EWP कैंडिडेट हु आर मेल एंड ₹300 फॉर द SC ST कैंडिडेट फॉर द एंड द वुमेन कैंडिडेट। तो ये इसके लिए वुमेंस के लिए प्रेफरेबल है। नेक्स्ट आपको ये बताया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन ही पेड होगा, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है, फीस भरने की है थ्रू अ पेमेंट मोड, दैट इज़ 8 तारीख है जून का 2020। द एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल, जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। अब इसमें बताया गया है कि फॉर द एमटेक प्रोग्राम ऑफर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड द एमटेक इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग RF एंड माइक्रोवेव्स इंजीनियरिंग एंड VLSI एंड द माइक्रो सिस्टम ऑफर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ avionics candidate will be rank listed based upon only on the valid GATE score, and the admission list would be prepared based upon the rank list, available number of vacancy and preference given by the candidate, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्रांच का जो है वो अकॉर्डिंग टू द वैलिड गेट स्कोर के ही अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द गेट स्कोर फॉर द other MTech or Master's Science program offered by the Department of Chemistry, Earth and the Space Science, Physics and Aeronautics. The application who are shortlisted for the MTech Masters of Science program for the above mentioned programs are required to appear for the interview. List of the shortlisted candidate for the interview for the Department of Chemistry, Earth and Space Science and Physics and Avionics will be displayed in the IISc website 17 June 2020. So the shortlisted candidate may download their interview call letter from the website. So the interview, next point is that the interview will be conducted through video conferencing. This is very important due to COVID-19. The interview is conducted by the only video conferencing. So detail will be announced later, and the provisional admission list will be
prepared based upon the GATE score, interview test score and the number of vacancy and preference given by the candidate. तो इन बेसिस पे प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट हम ये इंस्टीट्यूट तैयार करेगा. आफ्टर द प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जब पब्लिश हो जाएगी तो कैंडिडेट हैज़ बीन रिमिट देयर फर्स्ट सेमेस्टर फी थ्रू ऑनलाइन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट. ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन फॉर्म अगर कैंडिडेट हो जाता है तो उस तरीके से आपको भरना पड़ेगा. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए तो वही सब आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होंगे तो आपकी सीट जो है नेक्स्ट रैंक वाले को रिलेवेंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. ये सारी चीज़ें हैं. और जो एमटेक स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैविंग कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे एमटेक स्टूडेंट है विथ वैलिड गेट स्कोर विल बी रिसीव स्कॉलरशिप थ्रू AICTCE. ठीक है, एंड स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर द मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम द स्कॉलरशिप विल बी पेड बाय IIST और रिस्पेक्टिव CSIR UGC फेलोशिप. ओके, और जो भी स्टूडेंट जो हैं कैंडिडेट वो जॉब करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट है, PSU है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी. अब हम बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट ओपनिंग ऑफ IISc वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 मई को ही डिक्लेयर हो गया था, 15 मई 2020 को. और क्लोजिंग डेट है जो इस फॉर्म की वो है 8 जून 2020. लास्ट डेट फॉर द पेमेंट इज सेम इज़ 8 जून 2020. एंड डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ब्रांच इन विच हैव गेट एज वेल एज इंटरव्यू जिन्होंने दिया वो होगा जून 17 को डिक्लेयर होगा. और डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड रैंक लिस्ट ऑफ फॉर PG प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ओनली अपॉन द गेट स्कोर वो भी जून 17 को ही डिक्लेयर होगा. इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थ एंड द स्पेस साइंस, फिजिक्स एंड एवियोनिक्स को का जो होगा वो जून 20 से लेके 30 2020 तक हो सकता है. दीज डेट आर टेंटेटिव. और सिमिलरली फॉर द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंस, फिजिक्स एंड एवियोनिक के लिए जुलाई 8. दिस वन ऑल्सो अ टेंटेटिव डेट फॉर देम. एंड रिपोर्टेड डेट फॉर द इंस्टीट्यूट एट द इंस्टीट्यूट क्या होगा वो है अगस्त 28, 2020. Classes begin for all the PG program is September 1 and PG admission close September 14. These date all are about the tentative, but the application form submission and closing date is fixed. और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट डिस्प्लेशन डेट चेंज हो सकती है ड्यू टू कोविड. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. अब PG प्रोग्राम की फ़ीस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. इसमें क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. रिवाइज़ भी हो सकती है. यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इन्होंने 2019 और 2020 के गेट कट ऑफ के अकॉर्डिंग हर ब्रांच का गेट कट ऑफ और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इन्होंने डिस्प्ले किया है. तो आप अप्रॉक्सली 20 to 30 मार्क्स कम और ज़्यादा करके अपने गेट्स कम करके देख सकते हैं कि आप तभी आप फिल करें कि आपको लगता है कि आपका आ सकता है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.